Ignited Minds Tutorials, renowned for their exceptional educational resources, has recently released a comprehensive series of videos on the topic of industries for Class 8 CBSE students. This initiative aims to enhance students' understanding of the different industries prevalent in our society and the impact they have on our daily lives. The videos cover a wide range of topics related to industries, including their classifications, types, and their significance in the economic development of a country. By presenting these concepts in an engaging and easy-to-understand manner, Ignited Minds Tutorials strives to foster a deep interest and knowledge in students about this crucial aspect of our civilization. Each video is meticulously designed to provide a step-by-step breakdown of vital industrial sectors like manufacturing, agriculture, mining, and service industries. Students will gain valuable insights into the functioning of these sectors and their contribution to employment opportunities and overall economic growth. Moreover, the videos also shed light on the importance of sustainable and responsible industrial practices, emphasizing the need for conservation of resources and the reduction of environmental impact. This forward-thinking approach encourages students to think critically and envision a future where industries coexist harmoniously with nature. Ignited Minds Tutorial Series on Industries for Class 8 CBSE is undoubtedly a valuable resource that will empower students with the knowledge and skills needed to thrive in a globalized and technologically advanced world. By embracing this educational offering, students can confidently navigate the complex landscape of industries and contribute meaningfully to their communities and the world at large. Okay, so Pachapati will start with industries. Okay, industries क्या होती हैं और इनका हमारे जीवन में क्या contribution है? Have you ever given a thought to the fact that the notebook you see for writing? तो industries मतलब क्या होती है? What are industries? पहली बात तो ये क्या है? What are industries? इंडस्ट्रीज मतलब जो बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करे. फॉर एग्जाम्पल जैसे चरखा चलाकर भी आप अपने कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं, है ना. गांधी जी ने चरखा चलाना सिखाया था हमें. तो चरखा चलाकर अगर आप देखोगे कि साल भर में अगर पूरे दिन आप हर रोज कम से कम 4 घंटा चरखा चलाएंगे तो साल भर में आपको 4 कपड़े मिलेंगे जो आप पहन सकते हैं. ठीक है, लेकिन क्या हर एक के पास इतना टाइम है कि रोज 4 घंटा चरखा चलाए? ठीक है, तो इसीलिए हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े पैमाने पे किसी एक चीज को प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, ताकि दूसरी चीज को कोई दूसरा प्रोड्यूस करे, तीसरी चीज को कोई तीसरा प्रोड्यूस करे. ठीक है, सो इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज केटरिंग टू द ह्यूज पॉपुलेशन एंड दे आर एंगेज्ड इनटू मास प्रोडक्शन. ठीक है, सो हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यूज्ड फॉर राइटिंग हैज कम टू यू आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? काफी सारी भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, पेपर का बनना और उसको नोटबुक में प्रिंट होना और आपका उस तक पहुंचना, मतलब उस तक आपका पहुंचना, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली इंडस्ट्रीज? इट स्टार्टेड, तो आपको देखोगे अगर जो पेपर या नोटबुक आप पढ़ रहे हो, इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री. ये भाई साहब किसी ट्री का पार्ट था. ठीक है, उसमें से वुड पल्प निकला. इट वॉज कट डाउन, ट्रांसफर्ड टू द पल्प मिल. अभी इसमें से पल्प निकाला गया जो पेपर पल्प होगा. ठीक है, there the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. इसको भाई साहब wood pulp में convert किया गया. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. ठीक है, इस wood pulp को भाई साहब केमिकल से मिक्स कराकर फिर मशीन से पेपर का प्रिंटिंग हुआ. This paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hands. इस तरह से धीरे धीरे भाई साहब ये हम तक पहुंचा. ठीक है, ओके. सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. सो दीज वर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल. ठीक है, तो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग जो हुए. ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. सो दे वर बेसिकली गिवन मोर वैल्यू. फॉर एग्जांपल पल्प वाज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक. तो पल्प को हमने भाई साहब पेपर में चेंज किया. पल्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक. ठीक है, ये चेंज होता रहा. देखो, पल्प का पेपर में चेंज होना एंड देन पेपर बेसिकली चेंज इनटू नोटबुक. ठीक है, these represent the 2 stages of the manufacturing process. ये भाई साहब 2 स्टेजेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के. ठीक है,
द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड, तो पेपर जो कहां से बना, वुड पल्प से बना, एंड क्लॉथ ये किससे बना, कॉटन से बना, हैव हैड वैल्यू एंड एडेड देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इनका देखिए, जो वुड था वो हमारे किसी काम का नहीं था शायद, लेकिन उससे हमने पल्प निकाला और उससे हमने पेपर बनाया, तो ये हमारे लिए बहुत काम का हो गया। ठीक है, सो वैल्यू ऐड होती है, हर प्रोसेस में वैल्यू ऐड होती है। जैसे अगर आप देखोगे गेहूं से बनता है आटा, उस आटा से आप रोटी बना सकते हैं, उस आटे से आप भाई साहब बिस्कुट बना सकते हैं, उस आटे से भाई साहब और कुछ भी बना सकते हैं। तो ये अलग अलग वैल्यू ऐड है। ठीक है, उस प्रोसेस पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे आप अलग अलग वैल्यू एड्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सो आपका देखो ये वुड पल्प था, ये आपके वुड से ये पल्प निकाला हुआ है और इससे बने हैं पेपर रोल्स। ठीक है, इन पेपर रोल से बुक्स, नोटबुक्स वगैरह जो भी हैं वो बनते हैं। ठीक है, कॉटन है जो हमको पेड़ों से मिलता है, उस कॉटन से बनता है क्लॉथ। ठीक है, दीज आर बेसिकली क्लॉथ्स। सो इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी। तो जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है और उसकी ज्यादा यूटिलिटी भी होती है देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो जिस रॉ मटेरियल से वो बना है उससे उस फिनिश प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू होती है। द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर यूटिलिटी एंड वैल्यू देन द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, ये हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है, ये हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, ये हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। सो द फिनिश प्रोडक्ट विल हैव मोर वैल्यू। ठीक है, इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of services। इसको लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, what is basically an industry। ठीक है, ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, हो गया डन। इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of services। तो इसमें क्या है भाई साहब, कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे अभी अभी आपने देखा कि हमने पेपर से पेपर पल्प बनाया और पेपर पल्प से हमने पेपर बनाया। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ये आपका जो मिनरल्स हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, फिर आपका लेट्स से आयरन हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली वी एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो आपका सर्विसेज जो है, सर्विसेज मतलब कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है जो आपको मिल रही है, इंटरनेट एक सर्विस है जो आपको मिल रही है। ठीक है, रोड्स जो है वो एक सर्विस है, रेलवेज एक सर्विस है, वाटर सप्लाई एक सर्विस है। तो ये भी तो एक इंडस्ट्री है ना भाई साहब, रेलवेज की इंडस्ट्री है। ठीक है, वाटर सप्लाई की भी तो एक इंडस्ट्री हुई ना, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मतलब जहां से आपको भाई साहब गुड्स मिलते हैं या सर्विसेज मिलते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। तेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भाई साहब आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ओके। सो जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को निकालते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स,
एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो ये सारे जो है आपके इंडस्ट्री के पार्ट हैं, ठीक है। क्या मूवी एक इंडस्ट्रीज है? यस इट इज, मूवी इंडस्ट्री है भाई साहब। एंटरटेनमेंट भी एक इंडस्ट्री है अपने आप में, ठीक है। सो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं आपकी। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये आपका कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया। ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हम करते हैं पहला किससे? रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल्स मतलब जो आपके जिसको आपने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है। रॉ मटेरियल से, साइज से, ओनरशिप से। सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच यू क्लासिफाई इंडस्ट्रीज। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो इन तीन क्लासिफिकेशंस को लिख लीजिए इंडस्ट्रीज के, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट दे यूज, on the basis of their size and on the basis of their ownership. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप। ओके, इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, मिनरल बेस्ड, मिनरल्स पे बेस्ड हो सकती हैं, ठीक है। मरीन बेस्ड, मरीन बेस्ड हो सकती हैं भाई साहब। मरीन बेस्ड मतलब आपके सीज के ऊपर इंडस्ट्रीज, हाँ हाँ, मछली पकड़ना भी, ठीक है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मरीन इंडस्ट्रीज इन इट्स वे, ह्यूज इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बाबा रामदेव की इंडस्ट्री नहीं पे चल रही है भाई साहब, ठीक है। और कोई मामूली इंडस्ट्री नहीं है भाई साहब, 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है वो, ठीक है। सो फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज। तो ये सब अलग अलग भाई साहब रॉ मटेरियल्स के ऊपर है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर, बहुत बड़े पैमाने पे जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, कोल निकाल रहे हैं आप, आयरन निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन वी हैव मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन से आप सिर्फ फिश ही नहीं निकालते हैं, आप ऑयल्स भी निकालते हैं। सो दीज आर बेसिकली मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन वी हैव फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट में से आप वुड निकालते हैं, वुड का पल्प बनाकर पेपर बेचते हैं, ठीक है। ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। तो ये क्या करते हैं भाई साहब? प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी प्लांट से आपको कॉटन मिल रहा है, कॉटन से आप कपड़े बना रहे हैं। एनिमल्स से भाई साहब आपको मीट, यू आर गेटिंग एग्स, ये सारा बन रहा है भाई साहब, ठीक है। सो इससे इंडस्ट्रीज बनती हैं। फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, वेजिटेबल, ये सब आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो फूड प्रोसेसिंग हो रही है भाई साहब, केले के जो आपके वो बनते हैं, चिप्स बनते हैं, ठीक है, दैट इज एन एग्रो बेस्ड। वेजिटेबल ऑयल, जो भी आप ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हो, राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हो, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आता है, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल वगैरह, ठीक है, जिससे आप खाना पकाते हो। कॉटन टेक्सटाइल, जो आप कपड़े पहनते हो, वो भी आपका क्या है? एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इसको भी हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मानते हैं, क्योंकि ज्यादा करके जो किसान होते हैं वो डेयरी फार्मिंग करते हैं, ठीक है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स आपके जो हैं दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। लेदर इंडस्ट्री, ये भाई साहब आपका हो गया लेदर इंडस्ट्री, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। तो ये भाई साहब किसको यूज करते हैं? मिनरल ओर्स को यूज करते हैं। दीज आर मिनरल ओर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो दूसरे इंडस्ट्रीज को फीड करते हैं, ठीक है। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। फ्रॉम आयरन ओर हमसे क्या हमको भाई साहब क्या मिलता है? आयरन ओर से हमको मिलता है आयरन, और ये आयरन से हम अलग अलग मशीन्स बनाते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है। ओके, सो आयरन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड, दिस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हेवी मशीन्स, ठीक है, हेवी मशीनरी। फिर आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, देन वी हैव रेलवे कोचेस। ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज में आयरन का इस्तेमाल होता हुआ हमको दिखता है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल। तो हमको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं सीज से और ओशन से,
फिशेज हो गए, ऑयल्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजों को भाई साहब यूज किया जाता है। ऑयस्टर्स हो गए, ठीक है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जांपल। तो फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सी फूड, ठीक है, ओके। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है, फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होता है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, काफी बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां प्रोड्यूस होती हैं, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, इन सब चीजों से, इन सब चीजें कहां से आ रही है? फॉरेस्ट इंडस्ट्री से आ रही है, ठीक है। साइज, अभी हम बात करेंगे साइज की। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ साइज? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा आपने इंडस्ट्री में लगाया है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, साइज। व्हाट डज साइज मीन इन इंडस्ट्रीज? ठीक है, ओके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं एक, ठीक है, और क्या होती है भाई साहब? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज जस्ट 1 करोड़, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भाई साहब क्या होगा? ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन ₹1 करोड़, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़ है। तू संस्कृत के लिए 5 बजे आ सकता है ना सैटरडे को, की तरह वो रहेगा एकेडमी, 5 बजे चलेगा ना। इन्वेस्टमेंट इज मोर देन ₹1 करोड़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड एंड बाय द आर्टिशियंस। तो आप हाथ से इनको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सो बास्केट वीविंग हो गया भाई साहब एक आपका, पॉटरी हो गया। बास्केट वीविंग मतलब बास्केट्स बनाना, पॉटरी मतलब जो आप घड़ा वगैरह बनाते हैं। एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो इन इंडस्ट्रीज को अपन क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। दीज आर बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्रीज। पॉटरी हो गई भाई साहब, ये देखा होगा आप लोगों ने, घड़ा वड़ा जो बनता है, मटका वगैरह जो बनता है, ठीक है। और क्या है भाई साहब? आपके हैंडीक्राफ्ट्स। सो बास्केट वीविंग, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट्स और एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। Small scale industries use lesser amount of capital. They use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volumes of products. तो small scale industry में कम पैसा लगता है, कम इंसान इन्वॉल्व होते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है, और वॉल्यूम ज्यादा होता है प्रोडक्ट्स का। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो बड़े मशीन्स लगते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट पैसा भी ज्यादा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी ज्यादा हायर क्वालिटी की और ज्यादा वॉल्यूम में भी होती है, ठीक है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे पापड़ बनना, अचार, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट जूसेस, ये सब आपके भाई साहब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में होती है। सिल्क वीविंग, आप सिल्क से बनाते हैं, और सिल्क बेसिकली आपको भाई साहब सिल्क वॉर्म से उतारना पड़ता है, उसको आप सिल्क थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। तो ये जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। हाँ, फूड प्रोसेसिंग में रहेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बेसिकली, देखो आप खुद वड़ा पाव बेच रहे हैं तो आप किसी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, यू आर बेसिकली अ रिटेलर हैं आप, ठीक है। आप एक चीज बना रहे हैं और बेच रहे हैं, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री। व्हाट यू आर डूइंग इज डेफिनेटली फूड प्रोसेसिंग, बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री मतलब बड़े पैमाने पे उत्पादन करना, ठीक है, तो वो होता है आपका इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। यस, आप बोलेंगे कि भाई साहब क्या एक बड़ा पाव वाला फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है? यस, अ पर्सन हु इज सेलिंग समोसास ऑन द स्ट्रीट्स, इज ही अ पार्ट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? यस, ठीक है। अ पर्सन हु इज, ये जो चाय बेच रहे हैं जो लोग, वो लोग भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पार्ट है। सो ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री मतलब होता है ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना। जैसे समझ लो भाई साहब बहुत सारी महिलाएं हैं, लिज्जत पापड़ जैसे एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बहुत सारी महिलाओं ने मिलकर इस यूनिट को खोला है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, क्लियर है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ऑटोमोबाइल्स का मैन्युफैक्चर होना या हेवी इंडस्ट्रीज का, दीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देन वी हैव ओनरशिप। ओनरशिप में क्या होता है भाई साहब, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये आपके इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशंस हैं। डन डन। सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब जो लोग अपने प्रॉफिट के लिए भाई साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर। स्टेट ओन, स्टेट ओन को हम दूसरे नाम से जानते हैं विच इज पब्लिक सेक्टर, इसको अपन पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे रेलवेज आपका पब्लिक सेक्टर है, हाईवेज आपका पब्लिक सेक्टर है, आपका भाई साहब लेट्स से बसेस आपके पब्लिक सेक्टर है। और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, ये आपके भाई साहब पब्लिक सेक्टर है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट का सेक्टर है ये, ठीक है, ओके। देन वी हैव जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में दोनों भी रहेंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। देन वी हैव द कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब जैसे अमूल दूध हो गया, वराना हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस सेक्टर को बनाया है, कोई एक ओनर नहीं है, बहुत सारे। जैसे आप देखोगे गांव में जितने भी किसान लोग हैं उनके पास भैंस गाय तो है ही, तो दूध तो पर्याप्त मात्रा में है। सो इन सब लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाया। जैसे आप एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो तो जो मेंबर्स हैं वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द कोऑपरेटिव सेक्टर। आपका वारना दूध हो गया, अमूल दूध हो गया, लेट्स से आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपके कोऑपरेटिव सेक्टर से आते हैं ज्यादा करके। तो ये 4 टाइप के आपके सेक्टर्स हो गए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर, ओके, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ओके। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भाई साहब गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। इट इज नॉट ओन बाय एनी प्राइवेट एंटरप्राइज, ओके। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक स्टेट मतलब गवर्नमेंट और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है, इसको अपन बोलेंगे जॉइंट सेक्टर। जैसे मारुति जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इट इज बेसिकली अ जॉइंट सेक्टर, ठीक है। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट ओनर्स। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। देन वी हैव द कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स, जैसे आपका देखो मैंने बोला अभी अमूल दूध हो गया, ठीक है, जैसे सुधा, तो ये आपके अलग अलग जो है दीज आर कोऑपरेटिव सेक्टर्स। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो पहली तो बात यह है कि आपका जो इंडस्ट्री है वो अपने रॉ मटेरियल से जितना पास होगा उतना आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जमशेदपुर में लोकेटेड है। जमशेदपुर से आयरन ओर को निकाला जाता है और वहीं पे प्रोसेस किया जाता है। अगर भाई साहब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को हमने भाई साहब लेट्स से मुंबई में लोकेट कर दिया होता तो कितना दूर आना पड़ता था, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाता था, ठीक है। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, देन लैंड, देन वी हैव वाटर, देन वी हैव लेबर, देन वी हैव पावर, देन कैपिटल एंड देन ट्रांसपोर्ट। So all these are factors which affect the location of industries.
ऑब्वियसली द मार्केट, ठीक है। इन फैक्टर्स को नोट कर लीजिए जरा फटाफट फटाफट। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज और रादर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? हो गया डन। Industries are situated where some or all these factors are easily available. Sometimes the government provides incentives like subsidized power. तो कहीं कहीं पे पावर, देखिए इंडस्ट्रीज को बहुत हेवी पावर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। तो कभी कभी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए पावर को, यूनिट को ड्रॉप कर देती है। जिस यूनिट में आप पावर को खरीदते हैं, एनर्जी को, जो आपकी बिलिंग होती है, ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पे सिर्फ इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जैसे आपका MIDC हो गया, ठीक है। तो ये सब एरियाज में आपको पावर सब्सिडाइज रेट्स में मिलती है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है इंडस्ट्रीज को। क्या गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? आंसर इज नो। लेकिन अगर गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करे, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली आपका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, ठीक है। ओके, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट द इंडस्ट्रीज मे बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज, ताकि इंडस्ट्रीज जो है तो आपके बैकवर्ड एरियाज में लोकेट हो पाए, ठीक है। सो दीज आर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज होती हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट हैपन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम में एक इनपुट है, एक प्रोसेस है और ये एक आउटपुट है, ठीक है। इनपुट, द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपके इनपुट्स हो गए। व्हाट आर द इनपुट्स? रॉ मटेरियल्स हो गए आपके इनपुट्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर ऑल बेसिकली द इनपुट्स ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है। एक इंडस्ट्री के ये इनपुट्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए भाई साहब आपके, लेबर हो गया, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो लगने ही वाला है, ठीक है। दैट इज द इनपुट प्रोसेस। द प्रोसेस इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो आपके रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है इन इंडस्ट्रीज एंड दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज, ठीक है। सो रॉ मटेरियल्स हैं जिनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न्ड फ्रॉम इट। तो आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम दैट इज बेसिकली अर्न्ड फ्रॉम इट। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट्स में भी, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, देखो कॉटन एक इनपुट हो गया, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सब आपके इनपुट्स हो गए भाई साहब। द प्रोसेस इंक्लूडिंग गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये सब आपका भाई साहब कॉटन में होगा, तभी तो जाकर वो प्रिंट होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो कॉटन तो हमने निकाल लिया, लेकिन उस कॉटन में क्या सब प्रोसेसेस करने हैं उसको अपन बोलते हैं प्रोसेसेस, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।